Hello, Jai Hind, Vande Mataram. Today we are going to discuss about the famous poem and sonnet which was written by the famous Elizabethan era writer William Shakespeare. Sonnet number 130. 130. You all know about the Shakespeare. I need not to tell about Shakespeare, what he wrote and what the he is a famous writer at his time. He also you can when you write Shakespeare, you can feel the aura of Shakespeare, his writings, his writing style, in which style he wrote many of the sonnets. He also wrote one of them. This is my mistress eyes are nothing like the sun. This is one of them. In this sonnet, my mistress eyes are nothing like the sun. This sonnet was written at the time of 1519. This sonnet is written in 1590s and published in written in 1590 and published in 1609. It was published in 1609, written in 1519 and published in 1609. In brief discussion in this sonnet, we will study honestly and beautification of the poem, how he wrote the sonnets. He also wrote 154 sonnets. This sonnet includes the Dark Lady sonnet. This sonnet also contains Elizabethan poetry and Elizabethan age qualities. At this time, the peoples are discussing about the white skin, beautiness with white skin. This sonnet, my mistress eyes are nothing like the sun. This sonnet also contains as a category of Petrarchan sonnet. This sonnet fall in the category of Italian sonnet or influence with Italian sonnet. In this sonnet, we also talk about the beautification of a human society, not about the objectification of a woman. He describes the honesty. He also describes about the honesty and honesty rather than the unreal beauty. Unreal beauty, it means he does not follow the things that ever follow by the normal peoples in our society. He identifies the beauty standards at the time of Elizabethan era. At the Elizabethan society, fair skin is the symbol of beauty. As ideal beauty, he questions those beauty standards at the time of Elizabethan era. Now we will begin with sonnet. Begin with the lines of the sonnet. First is, this sonnet is written in 14 lines, 3 lines quatrains and in iambic pentameter. Follow the 3 lines quatrains, 3 line quatrains in iambic pentameter. Iambic pentameter, in just a minute. Iambic pentameter and collection of 154 sonnets published in 1609. Okay, rhyme of the sonnets AB AB. First 3 lines की AB 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 CD CD EF EF और GG. ठीक है, this is the rhyme of Shakespearean sonnet. Quatrains and closing couplet. क्वार्टेंस 12 क्वार्टेंस, 12 तो क्वार्टेंस, 3 लाइन के 4 क्वार्टेंस. ठीक है, और 3 क्वार्टेंस 4 लाइन के और 3 क्वार्टेंस ऑफ 4 लाइन्स एंड 1 कपलेट ऑफ 2 लाइन्स. सब्जेक्ट डार्क लेडी एंड रियल वुमन, नॉट अबाउट आइडियलाइज म्यूज. म्यूज इट मीन्स ए मैसेंजर. द अफेक्शनेट जेनेटली सटायरिकल पोएम है. ऑनेस्ट एवर फ्लैटरी, नॉट टॉक अबाउट द फ्लैटरी. Flattery, that means if you wanted to done your work, then go in shelter of someone. मतलब किसी काम करवाने के लिए या काम निकलवाने के किसी व्यक्ति की चापलूसी करना. True love transcendence of beauty. Now we will begin with sonnet. Okay, we will start the sonnet. Now we will start the sonnet like this. Okay, just a minute. Okay, let's begin with the sonnet. My mistress' eyes are nothing like the sun. Let's begin.
from here. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more than her lips. Red, if snow be white, why then her breasts are done. ठीक है. If hairs be wire, black wires grow on her head. I have seen roses. I have seen roses, damask red and white. Damask red and white. But no such roses I see in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that form my mistress and reeks. Okay. I love to hear. I love to hear. I love to hear her speak. Yet well I know that music hath for more pleasing sound. I grant I never show the goddess to go. My mistress when she walks treads on the ground. Yet now we will discuss about the couplet. Yet by heaven I think my love as rare, and any she believed with false. Okay, complete reading. Now we will think about the rhyme scheme. How rhyme scheme follow? How this poem rhyme scheme follow? How it is follow? Like this. Sun फर्स्ट सन सन तो मतलब ए. ठीक है, तो ये इससे अलग हो गया. सेकंड लाइन में रेड तो बी अलग हो गया. फिर डन, सन और डन दोनों सिमिलर हैं तो ए हो गई. हेड, ठीक है, हेड फिर अलग हो गई तो ए बी ए सी हो गई. ठीक है, फिर वाइट. ओके, सी वाइट मतलब डी. ओके, चिक्स ए बी हेड रेड. सॉरी ये यहाँ बी आएगा. हेड रेड बोथ आर सिमिलर. ओके, फिर देन वाइट एंड डिलाइट सी सी. चिक्स एंड रिक्स बोथ सिमिलर डी डी. देन नो एंड गो. नो मतलब ई, नो का ई आएगा. साउंड एफ ई एफ. ठीक है, ई एफ. ग्राउंड, साउंड एंड ग्राउंड. नो एंड गो. ठीक है, और जी और जी. ओके, नाउ वी विल बिगिन विद द पोएम. माई मिस्ट्रेस. माई मिस्ट्रेस इट मीन्स माई बिलव्ड. माई बिलव्ड. मिस्ट्रेस इट मीन्स बिलव्ड है ना. मिस्ट्रेस मीन्स बिलव्ड. मिस्ट्रेस मीन्स माई बिलव्ड. बिलव्ड मतलब मेरी प्रेमिका. माई मिस्ट्रेस मेरी प्रेमिका की आइज मीन्स आंखें आर नथिंग लाइक द सन. मेरी प्रेमिका की आंखें सूर्य की तरह तो नहीं हैं. कोरल. कोरल इट ए टाइप ऑफ स्टोन, टाइप ऑफ रेड स्टोन. ओके, कोरल ए टाइप ऑफ रेड स्टोन. कोरल इज मोर फार आल्सो लाइक मतलब सिमिली का यूज़ किया गया. किसका? सिमिली, यूज ऑफ सिमिली. ठीक है, लाइक मतलब यूज ऑफ सिमिली. किस किस को? मिस्ट्रेस को और सन को, दोनों को कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए इसने क्या किसका यूज़ किया है यहाँ पे? सिमिली का. कोरल इज़ फार मोर. कोरल मतलब एक रेड स्टोन. ठीक है, कोरल इज हैंड यानी इज मानी है, फार यानी ज़्यादा, मोर देन हर लिप्स रेड मतलब उसके जो लिप्स है ना उनसे ज़्यादा रेड. तो क्या है? वो जो कोरल स्टोन है ना वो है. ओके, इफ़ यदि स्नो बी वाइट, अगर इफ़ यदि स्नो इज बी वाइट, अगर बर्फ़ ज़्यादा से बर्फ़ उतनी सफ़ेद है. वाई देन वाई यानी क्यों, देन हर ब्रेस्ट उसके जो ब्रेस्ट हैं आर डन तो उसके ब्रेस्ट इतने भद्दे क्यों हैं? तो उतने क्लियर नहीं है, उसकी ब्यूटीफाई नहीं कर रहे वो, उसके जो ब्रेस्ट है ना वो ब्यूटिफिकेशन नहीं कर रहे. इफ़ हेयर्स बी वायर्स, इफ़ यानी यदि, हेयर्स बी वायर. हेयर ही हेयर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? हेयर्स को किससे कंपैरिजन कर रहा है? वायर से. इट मीन्स यूज ऑफ मेटाफर, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक. ठीक है, लिविंग विद नॉन लिविंग थिंग्स, यूज मेटाफर. ओके, कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज कर रहा है, मतलब एग्जिजरेशन कर रहा है चीज़ों का. इफ़ हेयर्स बी वायर, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन ए रेड. इफ़ अगर उसके बाल वायर है ना, बी वायर, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड,
उसके सिर पर जो बाल है ना ऐसे, हर हेयर लुक्स लाइक ब्लैक वायर्स, इतने काले और इतने भद्दे भद्दे से डलनेस दिख रहे हैं उसके। तो पहले की जो फर्स्ट स्टेंज है उसका क्या है, देखो, मेरी जो बिलवड है उसकी आंखें है ना सूर्य की तरह नहीं हैं, और उसके जो लिप्स हैं वो भी उस कोरल स्टोन के जितने रेड नहीं हैं, उसके जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, उससे ज़्यादा तो वो स्नो ज़्यादा वाइट है, और वो स्नो इतनी ब्यूटिफिकेशन है जितनी ब्यूटीफाई उसके ब्रेस्ट नहीं है। उसके सिर पर जो बाल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उसके सिर पर ब्लैक वायर्स तार उग रहे हो। आई हैव सीन रोजेज, सेकेंड क्वार्टेंस, आई हैव सीन रोजेज डमेस्क, मैंने रोजेज को देखा है, डमेस्क मतलब मिक्सड, रेड एंड वाइट मतलब रोजेज को मैंने लोटस कलर के रोज़ देखे हैं, रेड एंड वाइट मैंने लोटस देखे हैं, बट नो सच रोजेज आई हैव सीन हर चिक्स। इट मीन्स ही इज सेइंग दैट माई बिलव्ड चिक्स हैज़ डज नॉट हैव एनी ग्लोनेस लाइक दैट लोटस, मतलब उसके जो चिक्स है ना, बट नॉट रोजेस सियोन हर चिक्स मतलब उसके गाल है ना उतने सफ़ेद और उतने अच्छे नहीं हैं, उतनी ग्लो नहीं है जितनी कि एक लोटस में होती है। एंड इन सम परफ्यूम्स, एंड और इन सम परफ्यूम्स मतलब फ्रेग्रेंस एक तरीके का, इज़ देयर मोर डिलाइट देन इन हर ब्रेथ फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रिक्स, मेरी मिस्ट्रेस की रिक्स हैं मतलब उसकी जो क्या है सांस है, रिक्स मतलब जो सांस है उसकी सांस में उतनी खुशबूदार नहीं है, एक फ्रेग्रेंस उसकी सांस में और उसकी ब्रीथ में इतनी फ्रेग्रेंस नहीं है जितनी एक परफ्यूम के अंदर फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, डिलाइट उतनी खुशी नहीं देती उसकी सांस। देन इन द ब्रीथ, ओके, आई लव हर स्पीक, मुझे उसका बोलना पसंद है, यट वेल आई नो, पर मैं जानता हूँ, दैट म्यूज़िक फॉर मोर प्लीजिंग साउंड, बट वो जो म्यूज़िक है ना मुझे उसका बोलना पसंद नहीं है, लेकिन पसंद है, लेकिन बट मैं जानता हूँ कि मुझे है ना जो क्या पसंद है, हाथ नहीं है, ज़्यादा पसंद है, फॉर मोर प्लीजिंग साउंड, वो जो म्यूज़िक है ना, जो म्यूज़िक का साउंड है ना वो मुझे ज़्यादा प्रसन्न करता है रादर देन किसके, उसकी जो वॉइस है ना उससे अच्छा। आई ग्रांट आई नेवर शो गोडेज माई मिस्ट्रेस वैन सी वॉक्स ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, माई मिस्ट्रेस वैन मतलब माई बिलीव्ड वैन सी वॉक्स ऑन द फील्ड ट्रेड, आई नेवर सीन ए गोडेज बट वैन आई हैव एवर सीन द गोडेज टू रन ऑन द ट्रेड्स, बट आई सीन माई बिलव्ड ही नेवर वॉक्स लाइक दैट, मैंने कई लोग देखे हैं या कई देवियाँ देखी है, डेटीज़ देखी है उसको चलते हुए, बट मेरी जो बिलव्ड है वो उस तरीके से नहीं चल पाती जिस तरीके से गोडेज चलती है, ठीक है, फिर भी वो अच्छी है। आई लव हर, ठीक है, उसका प्लीजिंग साउंड नहीं है, आई लव, मैं मेरी प्रेमिका से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मेरी प्रेमिका की जो आवाज़ है उससे ज़्यादा मुझे एक म्यूज़िक की वॉइस पसंद है। मैंने ये आई नेवर शो गोडेज गो, मैंने कभी भी देवियों को डेटीज़ को जाते हुए नहीं देखा है, पर चलती होगी तो वो अच्छी चलती होगी, मेरी मिस्ट्रेस भी उन देवियों की तरह नहीं चलती। नाउ वी विल कम ऑन द कपलेट, फाइनल कंक्लूजन ऑफ इट, ओके, यट एंड यट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर, मुझे पता है, यट एंड और यट अभी तक, बाय हेवन स्वर्ग में, आई थिंक माई लव एज रेयर, मेरा जो प्यार है ना वो क्या है, एक बहुत रेयर चीज़ है, ठीक है, बहुत दुर्लभ चीज़ है, एंड एनी बिलव्ड फॉल्स कंपेयर, और मैं मेरी जो प्रेमिका है ना उसको किसी के साथ में क्या नहीं कर सकता, तो मेरी प्रेमिका की जो चीज़ें हैं ना या मैं क्या नहीं कर सकता, फॉल्स कंपेरिजन नहीं कर सकता। इन दिस पोएम वी हैव डन पोएम हियर, इन दिस पोएम poet also uses symbols, satires, irony, imaginary, realistic love। आयरनी क्या यूज़ किया इन्होंने इसमें, राइटर ने आयरनी क्या यूज़ किया इसने, आयरनी क्या यूज़ किया राइटर ने, आई विल जस्ट टेल यू, जस्ट वेट ए मिनट। आयरनी क्या यूज़ किया, आयरनी राइटर ने क्या यूज़ किया, आयरनी इसके अंदर एंटी रोमांटिक पोएम है, एंटी रोमांटिक है, ठीक है, एंटी रोमांटिक है, एंटी रोमांटिक, लेकिन क्या वो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है किसको, अपने डीप लव को एक्सप्रेस कर रहा है, डीप लव को, राइटर क्या करता है, एक्सप्रेस कर रहा है डीप लव को। इमेजनरी का यूज किया है, इमेजनरी का यूज किया, इमेजनरी क्या यूज किया उसने, रोज़ को यूज किया है, रोज़ यूज किया है, स्नो को यूज़ किया है, सन को यूज़ किया है,
सन को यूज किया है, परफ्यूम यूज किया है, परफ्यूम एज ए फ्रेगरेंस के तौर पर यूज किया गया है उसने। और क्या चीज़ यूज की, इसके अपनी जो ब्यूटी है या फिर अपनी जो लव 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 लाइफ है उसको एक रियलिस्टिक लव के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है उसने। किसके रूप में, रियलिस्टिक लव का यूज किया है। और रियलिस्टिक लव रादर देन ब्यूटी, रादर ब्यूटी, सुंदरता के बजाय उन्होंने क्या किया है, अपना जो सच्चा प्यार है ना उसको उसने ज़्यादा महत्व प्रोवाइड किया। किसने, राइटर ने, ठीक है। राइटर ने अपने सच्चे लव के बजाय, अपनी जो ब्यूटीनेस के बजाय अपने सच्चे प्रेम को क्या किया है। अब देखो, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथ, इसमें क्या मिस्ट्रेस के बारे में स्टार्क नेगोशिएशन किया है, कंपैरिजन किया है चीज़ों का, विवाइड इमेजनरी की है, वी हैव टॉक अबाउट इट, हमने इसके बारे में बात कर ली। अब देखो एंट्री पेट्रार्चन क्या होता है। एंट्री पेट्रार्चन इज जस्ट डिस्कस अबाउट, पेट्रार्चन सोनेट ग्लोरीफाइड करता है, आइडियलाइज करता है अनटचेबल मिस्ट्रेस को। शेक्सपियर डेलिबरेटली डिसमेंटल्स करता है ईच कन्विक्शंस को। आइज, लिप्स, चिक्स, हेयर के बारे में बात की है उसने। जो 13 लाइन है उसके बारे में क्या कहता है, यट टू हेवन, मतलब इमोशनल चीज़ों के बारे में बात करता है। कैटलॉग्स फ्लोज के कपलेट डिक्लेयर, और जो लास्ट में जो कपलेट है वो डिक्लेयर करता है एग्जिजेशन एडोरेशन। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जेजरेशन या हाइपरबोल नहीं दिखाया गया है पोएम में। जो रियलिटी है उस रियलिटी को उन्होंने क्या किया है, शो किया है पोएम के अंदर। नो एग्जेजरेशन एंड जस्ट दे फॉलो द रियलिटी। इस ओके रिजेक्ट किया है पोएम के अंदर इसको। ऑनेस्ट कपलेट रिवेल्स करता है पोएम को, पर्पस करता है रेयर चीज़ों के बारे में, कंपेयर किया है ट्रूथफुल अफेक्शनेट, सप्रेस करता है चीज़ों को। ह्यूमर पावर के बारे में बात की है, मिस्ट्रेस की जो आर्ग्यूमेंट हैं उनके बारे में बात करता है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये लास्ट का जो कपलेट है वो हो गया पोएम क्लोजिंग अफर्मेंस ऑफ द ग्राउंड ट्रूथ प्रीशियस। अब हम और चीज़ें जो क्या इसमें यूज की गई है उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। जो चीज़ें पहली तो इसके अंदर जो फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन है, आल्सो फॉलो द फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की इसने, किसके बारे में, राइटर आल्सो डिस्कस अबाउट द feminist interpretation in the poem. Feminist interpretation in the poem, how he used the feminist interpretation in the poem. He also avoided due to the objectification of women's body. Some people are think that women are just only bodily thought for the human being, but women are not a bodily thought. Okay, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। राइटर ने इसी चीज़ को इसमें कम्प्लीटली तरीके से एग्जिजरेट किया है कि कम्प्लीटली तरीके से मतलब इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि वुमन को सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करना है, बल्कि उसकी जो रियल थॉट है, उसकी जो रियल थॉट प्रोसेस है, उस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए हमें, उस चीज़ के बारे में उन चीज़ों को सामने लाना चाहिए। और जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी है उस चीज़ को राइटर ने क्या किया, रिमूव किया है। उसने जो रियलिटी है राइटर्स की, जो फेमिनिज्म की जो रियलिटी है उस चीज़ को सामने लाया है राइटर। उसने बिल्कुल ये रिजेक्ट किया है कि महिलाओं को जो लोगों के द्वारा ऑब्जेक्टिफाइड किया जाता है उस चीज़ को रिमूव करके जो उसकी रियलिटी है उस रियलिटी को राइटर ने क्या किया है, सामने लाया है। उसकी रियलिटी को बताया, उसकी बॉडीली जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उस चीज़ को रिजेक्ट करके जो इंटरनल ब्यूटी है उस चीज़ को उसने क्या किया है, राइटर ने सामने रखा है। और उस टाइम पे, किस टाइम पे, एलिजाबेथन टाइम पे मोस्ट ऑफ पीपल्स ब्यूटी के स्टैंडर्ड क्या सेट करके रखते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वर देयर फेयर स्किन एंड ब्यूटीनेस बाय देयर बॉडी, नॉट देयर ब्रेन। बट हियर इन द पोएम राइटर डिस्कस अबाउट द brain and internal beauty of the ladies and women's. So this poem also follow the feminist interpretation and follow the Blasian tradition. That means Collagian beloved bodily parts. Collagian tradition क्या, Blasian tradition क्या होता है, जो वुमेन के जो बॉडीली पार्ट है ना उनको एक एक तरीके से क्या करना, इंटरप्ट करना या एक एक चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रोवाइड करना। और जो ये जो पोएम है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, इस पोएम के अंदर उन्होंने क्या किया है, जो शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 है उसके साथ में भी इस पोएम को क्या किया है, कंपैरिजन किया है। इसमें सटायर को फॉलो किया है, सटायर का यूज किया है। और जो चीज़ों को मोस्ट ऑफ चीज़ों को राइटर ने क्या किया, एग्जेजरेशन से बचाकर सामने रखी है चीज़ों को। ओके, नाउ
it's done. If there is any confusion, do the comment. Okay, thank you for watching. Jai Hind, Vande Mataram.